Hello everyone, how you all? Welcome back to Sunya. Yes, guys, I hope you all are doing really great. And this is a continuation in our series of MAD, that is Mains Article Discussion. I have already taken your moral thinkers and philosophers around the world, and we have already covered 9 parts, guys. In 9 parts, we have seen 9 scholars and we have seen their crux. I'm not saying that we have understood them fully because we cannot, right? Because for ethics, we are understanding it. For this particular syllabus, we are understanding it. I would request those people who are coming for the first time that you see the last 9 parts first, then only you will be understanding it in connection. ठीक है, GS4 में पार्ट है हमारा, ये GS4 का सिलेबस है एज पर यूपीएससी नोटिफिकेशन, पूरा GS4 का सिलेबस है एंड यू विल फाइंड द टॉपिक व्हिच आई एम टेकिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स अराउंड द वर्ल्ड. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज मेंस आर्टिकल डिस्कशन का वो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितना आप टाइम दे रहे हो एज इट इज आप यूटिलाइज कर सकते हो मीन्स में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, राइट? तो आपको ये सीरीज एक बार देखनी चाहिए. एंड आई एम टेकिंग योर दिस contribution of moral thinkers and philosophers from India and world, right? Right now I have taken this world and we have already covered Socrates, Plato, Aristotle, Thomas Aquinas, your Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, and your Rousseau, your Marx. And in this class we are going to see J.S. Mill. Very very important guy, J.S. Mill. Now you must be understanding also, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि हम इन लोगों से रिलेटेड कुछ ना कुछ बता सकते हैं. स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में 3 स्कॉलर्स ने बात करी, रूसो, J.S. जॉन लॉक एंड योर थॉमस हॉब्स, राइट? J.S. मिल गाइस, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनको यूटिलिटेरियनिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है? लेकिन सबसे पहले जानने से पहले 1807 से 1873 तक ही वाज लिविंग AD. दैट मींस ही वाज द कंटेम्पररी ऑफ मार्क्स, राइट? एंड ही वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर गाइस. नाउ कमिंग डायरेक्टली ऑन टू हिज आइडिया वाज ऑफ, फर्स्ट आइडिया ही गेव वाज ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. प्रोनाउंस करना थोड़ा, यूटिलिटी होती है ना किसी चीज की, किसी चीज को इस्तेमाल करना, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है? ये हम समझेंगे सबसे पहले इनका जॉन स्टुअर्ट मिल का यूटिलिटेरियनिज्म कंसेप्ट. अब एज पर यूटिलिटेरियनिज्म कंसेप्ट क्या है कि आपको किसी भी चीज में यूटिलिटी देखनी है. इफ दैट थिंग इज गिविंग यू प्लेजर, यू मूव टुवर्ड्स दैट थिंग, ठीक है? यू डू दैट थिंग, राइट? एंड इफ दैट थिंग इज गिविंग यू पेन, you move away from that thing. Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau was all talking about pleasure pain concept. तो ये यूटिलिटेरियनिज्म पहले भी चलता हुआ आ रहा था, मींस J.S. मिल से पहले भी चलता हुआ आ रहा था pleasure pain concept. So people, they were admitting that those things which give you pleasure, you should move towards that. Over the period of time, how capitalist was using this thing, capitalist was using that this production, my production house, if it gets more profit, then I'll be getting more, if they will be, the workers will be working long, I'll be getting more produce, more products will be out, more output will be generated, more profit will be generated, I'll be getting more pleasure. So I am right, I am ethically right because I am moving towards my pleasure. So the working class were being exploited in the name of this utilitarianism concept by the capitalist. Capitalist means those who are owning assets. Now this caused literally hardships for the workman, hardship for the peasants, right? Because they capitalists were justifying their acts on the basis of this utilitarianism concept. So during that time period, utilitarianism was considered as the pig's philosophy. Pig's philosophy means man is nothing but treating other people as pigs or considering himself as pig because he's just satisfying his appetite of increasing this pleasure in the cost of exploiting others, right? So over the period of time, in John Stuart Mill time, यूटिलिटेरियनिज्म को बुरा भला क्रिटिसाइज करने लग गए लोग कि भाई ये तो एक पिग्स फिलोसफी हो गई, राइट? तो जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या काम था?
यूटिलिटेरियनिज्म। जॉन स्टुअर्ट मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म कंसेप्ट में कुछ एथिक्स घुसाने की कोशिश करी, कुछ आइडियल्स घुसाने की कोशिश करी, दैट ही इंसर्टेड दीज थिंग्स to make to sound this utilitarianism a better concept because his masters used to follow this utilitarianism concept। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि इस डिबेट में यूटिलिटेरियनिज्म वाले लोग हार ना जाए, he gave certain ideals into utilitarianism। so what he gave, guys, he gave that the principle of utility as the principle of ethics, it should be utilized। he said that nature has placed man under the governance of sovereign master, pleasure or pain। See these type of things। सबसे पहले ये जो कंसेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म का, ये सारे की प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी शुड बी यूटिलाइज एज द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। ये उसके मास्टर जेएस मिल के मास्टर बेंथम ने प्रोपाउंड करी थी दीज थिंग्स। ही वाज बिलीविंग इन दिस। कैसे जेएस मिल चेंज करता वो हम समझते हैं। पहले उनके मास्टर्स ने क्या थ्योरी दी ये समझो कि कभी भी आपको एथिकल डायलेमा हो, यू अप्लाई दिस प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है कि भाई मेरे को प्लेजर मिल रहा है या पेन मिल रहा है ना, आई शुड मूव टुवर्ड्स दैट, विच इज कंपैरेटिवली रॉन्ग। हर सिचुएशन में ये नहीं हो सकता। दूसरा वो बोलता है प्लेजर इज अ क्वांटिटेटिव टर्म, क्वालिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। ही इज सेइंग दैट एज मच एज प्लेजर यू आप इकट्ठा कर सकते हो उतना लो। आपको ज्यादा प्लेजर मिल रहा है ये नापा जा सकता है, किस क्वालिटी का प्लेजर मिल रहा है ये नहीं नापा जा सकता। सो ही इज सेइंग दैट देयर इज लेस प्लेजर और हाइयर प्लेजर, देयर इज लेस प्लेजर और मोर प्लेजर, देयर इज नथिंग लाइक हाइयर प्लेजर और लोअर प्लेजर। So he is saying that pushpin is as good as poetry। ये बेंथम के वर्ड्स हैं। What he is trying to say that कि ऐसा नहीं होता कि आपको आपका प्लेजर की कोई क्वालिटी आप नहीं देख सकते, आप क्वांटिटी जरूर मेजर कर सकते हो। आपको बहुत अच्छा मजा आया है, कम मजा आया है, इसका आप आंकलन नहीं कर सकते, लेकिन आप इसका जरूर कर सकते हो कि मेरे को आई हैव मोर प्लेजर एंड लेस प्लेजर, इसको कंपेयर कर सकते हो। देखो इसको समझो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। ही इज सेइंग दैट आप क्वांटिटेटिव टर्म में प्लेजर को नाप सकते हो। दैट मीन्स आपको ज्यादा प्लेजर मिला या कम प्लेजर मिला। आप क्वालिटी टर्म में प्लेजर को मत नापो बिकॉज इट इज नॉट राइट। ही इज सेइंग कि आपको अच्छा प्लेजर मिला या थोड़ा सा कम प्लेजर मिला, समझ रहे हो, उस वे में, क्वालिटी के वे में, विच इज अगेन बेंथम क्रिटिसाइज्ड बाय पीपल अ लॉट बिकॉज हर किसी का अलग टेस्ट होता है। इफ यू हैव गुड टेस्ट इन म्यूजिक, इफ यू लिसन टू म्यूजिक और आप म्यूजिक सुनना पसंद है, तो योर टेस्ट टुवर्ड्स म्यूजिक, क्वालिटी टुवर्ड्स म्यूजिक डिफरेंट प्लेजर मिलेगा। रेदर अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है आपको डिफरेंट प्लेजर मिल रहा है। सो प्लेजर कैन बी क्वालिटेटिव आल्सो, राइट। प्लेजर इज मटेरियलिस्टिक इन ओरिजिन। बेंथम इज सेइंग कि भाई जितना ज्यादा मटेरियल थिंग्स आपके पास होंगे आप उतने प्लेजर। तो व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग इज बेंथम इज टॉकिंग अबाउट द कैपिटलिस्ट सोसाइटी वी आर लिविंग इन, राइट। He also said that pleasure is understood on the basis of experience rather than sacrifice, but there is nothing like that. People who have fought for independence, for our India's independence, they were finding pleasure, they was finding happiness in sacrifice to Bhagat Singh, Sukhdev, Chandrasekhar Azad, right? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, it is just merely to satisfy our needs। कहीं ना कहीं ये क्रिटिसाइज हुई और बहुत ज्यादा हुई, तो इसी को ढंग से करने के लिए, इसको थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए जेएस मिल आए, एंड जेएस मिल एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे, गाइस। तो मिल ने कैसे रिवाइज किया यूटिलिटेरियनिज्म को? He said the pleasure is not just quantitative, pleasure is qualitative also। He is saying that there is difference between pleasure and happiness। Pleasure एक momentary चीज होती है, happiness is like satisfaction of soul, right? और बेंथम happiness को मना कर रहा था। He is saying that not only pleasure differ in quality, but persons also differ in quality। You understand that honeybees शहद की तरफ जाते हैं, like what he is trying to say is that अलग अलग टेस्ट होता है। कोई कुछ काम करके खुश है, कोई ड्रग्स वगैरह में एंगेज्ड है, कोई किताबों में एंगेज्ड है, किसी को किताब बिना किताब पढ़े नींद नहीं आती, किसी को बिना स्क्रॉल करे नींद नहीं आती मीडिया में, सोशल मीडिया में, राइट। तो हर किसी का अलग अलग प्लेजर है। सबके प्लेजर सेम होने लग जाते हैं तो हर कोई उसी के पीछे भागता है, राइट। सबका हैप्पीनेस का सोर्स अलग होता है, सबके प्लेजर के सोर्स अलग होते हैं, राइट। So according to Mill, he is saying that it is better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied। समझ रहे हो? It is better to be a man dissatisfied than a pig satisfied। You don't go behind merely fulfilling your pleasures to fulfill your body needs। Understanding, certain people will like to talk to you to understand you, certain people will exploit you, then only they will feel pleasure। Certain people will talk, certain people will understand you, they will feel good while talking to you, making an understanding। तो अलग अलग लोगों को, he is saying the persons also differ in quality, that how they perceive, how they receive the pleasure, right? So this was Mill, guys। One more concept which you have to see of Mill is on liberty।
लिबर्टी का कंसेप्ट, थॉमस हॉब्स वर सेइंग दैट लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, जहां पे लॉ साइलेंट है वहां पे लिबर्टी है। जॉन लॉके वाज सेइंग लिबर्टी तो हमें मिलना चाहिए, राइट, लिबर्टी शुड बी देयर, इट डज नॉट मीन दैट लिबर्टी इज देयर देन लॉ इज साइलेंट, राइट। तो थॉमस हॉब्स वर सेइंग कि लिबर्टी की कोई जरूरत नहीं है, जॉन लॉके वाज सेइंग लिबर्टी की जरूरत है। रियल वे में लिबर्टी को एक्सप्लेन करने वाले हमारे जेएस मिल ही हैं, राइट। देखो, ऑन लिबर्टी जेएस मिल यूज्ड टू से दैट लिबर्टी शुड बी देयर, ठीक है, लिबर्टी शैल नेवर बी कंटेन्ड बाय द स्टेट। अगर आप स्टेट की लिबर्टी कंटेन, अगर आप लोगों की लिबर्टी कंटेन कर रहे हो, इफ द गवर्नमेंट इज डूइंग सो, दैट नेशन कैन नॉट नेवर बी ग्रेट, because liberty gives us freedom to express anything, right? Scholars have reviewed that before J.S. Mill, John Locke also talk about liberty, but John Locke was restrictive, right? He was talking about only certain aspect of liberty, whereas J.S. Mill talked about every aspect of liberty. He says that liberty should only be contained on the principle of harm principle. इसे बोलते हैं हम harm principle. Harm principle means if the actions of a person is self-regarding means I am doing some harm to me only, I am doing something for me, then state should not interfere. And if the actions are others regarding, if I am going and I am slapping somebody, I am fighting with some other person, because I have liberty to do anything, I have freedom to do anything, can I disturb other person? No, then he is saying that the state should interfere. और इसी प्रिंसिपल में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट और लॉस काम करते हैं, that you can do whatever you want, but through your actions other people should not be getting uncomfortable, should not be getting harmed. That is what John J.S. Mill liberty is. और इसी बेसिस पे लॉ बनाए गए हैं. He is also given the liberalism, he is also said to be a father of liberalism, guys. राइट वैसे जॉन लॉके को फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है, बट रियल सेंस में लिबरलिज्म जो जेएस मिल के थ्रू भी डिनोट करते हैं. लिबरलिज्म इज अ आइडियोलॉजी वेयर एवरीबडी हैज फ्रीडम, एंड एज पर हिम फ्रीडम इज नीडेड फॉर इनोवेशन. Innovation is happening because of this aspect only. All right, guys. So this is your harm principle and John Stuart on liberty, right? So till now we have tried to understand Socrates, Plato, Aristotle, Aquinas, Machiavelli, Thomas Hobbes, Locke, Rousseau, Karl Marx, J.S. Mill. Again, I am saying that we are just doing the crux of it from the means-oriented point of view. These thinkers have written a lot because they have devoted their ideas, they have devoted their life for these ideas to talk about this. But you just have to understand that what they used to think, what important they have given you. और जरूरी नहीं है कि सारी स्टेटमेंट यहाँ से आएंगी. J.S. Mill, कार्ल मार्क्स वगैरह से एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं आता, बिकॉज उन्होंने एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया कुछ. दे हैव टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मोर, समझ रहे हो? तो यहाँ से ज्यादा सोक्रेटिस, प्लाटो, दे वर टॉकिंग अबाउट एथिक्स मोर, बिकॉज फिलोसफी, एथिक्स एज अ सब्जेक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर ओनली. तो इन एंगल से यहाँ से ज्यादा स्टेटमेंट आती है. ये भी आपको समझना पड़ेगा. हर एक पर्टिकुलर स्कॉलर को उतनी इंपॉर्टेंस हमें नहीं देनी, ठीक है? सो आई विल मीट यू विद द इमैनुअल कांट एंड जॉन रॉल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. अभी क्या है, आपको एक आइडिया लग चुका है कि कब ये एग्जिस्ट कर रहे थे, क्या इनके कोर वैल्यूज थे, क्या इनकी कोर फिलोसफीज थी. फ्रॉम पॉलिटिकल एंगल दे हैव गिवन मोर फिलोसफीज रादर देन फ्रॉम द एथिकल एंगल, राइट गाइस? सो थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, गाइस.